میرے بائیں طرف شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ آف پاکستان، یہاں پہ نیاز اللہ خان نیازی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، میرے ساتھ عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، ہماری چیف آرگنائزر پنجاب، میرے باقی ساتھی یہاں پہ رفقۂ کار یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جیل میں یہاں پہ عدالت کے آرڈرز کے باوجود نہیں ملنے دیا۔ پچھلے ہفتے بھی ہم لوگ آئے، 2.5 مہینے سے ہم لوگ متواتر آ رہے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں خواتین و حضرات کی لسٹ جو کہ اس جمعرات کی ملاقات کی ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود تحریر کر کے اور ہمارے وکلاء حضرات کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اور عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے جو سیاسی رفقۂ کار ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جن لوگوں کا کہیں گے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہاں پہ میرے ساتھی نیاز اللہ خان نیازی صاحب بحیثیت فوکل پرسن جیل کے یہاں پہ حکام کو اور لوگوں کو دیں گے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ جو یہاں پہ اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کے کہنے پہ، انٹیلیجنس والوں کے کہنے پہ، کس کے کہنے پہ یہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے دونوں بچوں سے انہوں نے تقریباً پچھلے 2.5-3 مہینوں سے بات نہیں ہونے دی۔ ان کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات، ان کی باقی بہنوں کی ملاقات انہوں نے نہیں ہونے دی۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ کہیں پہ جیل مینیول میں نہیں لکھا کہ یہ ملاقاتیں نہ ہوں۔ اور سو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ میں بھی یہاں پہ جیل کی جو مسجد ہے، وہاں پہ جو چوکی کی مسجد ہے، ادھر زور کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد مجھے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہی مسجد ہے جہاں پہ اعظم خان سواتی صاحب اور مجھے مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی۔ یہ کیسے اسلامی مملکت خداداد پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں پہ پولیس جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ نمازیوں کا رستہ روکتے ہیں، مسجد کے دروازے بند کرتے ہیں۔ جہاں پہ پولیس یہ کام کرے تو پھر پیچھے خواتین و حضرات کیا چیز رہ گئی؟ جہاں پہ ایک میرے دل میں تو وزیر اعظم ہی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو عید کی نماز نہ پڑھنے دے تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جیل کے اندر سارا کنٹرول ان کا، اور ایک مسلمان شخص کو وہ نماز نہ پڑھنے دیں، ان کو یہ اس سے بڑی اور بغیرتی نہیں ہو سکتی۔ یہی میں کہہ سکتا ہوں۔ توہین عدالت بار بار یہ کر رہے ہیں، اور آج بھی شبلی فراز صاحب نے توہین عدالت کی پٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ امید کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان بیٹھے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ باقی عدالتوں میں ہو، وہ کچھ اپنی جو آرڈرز ہیں اس کی پاسداری کریں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں، یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان یا سپریم کورٹ یا باقی ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے عدالتی آرڈرز کو امپلیمنٹ نہ کرا سکیں تو بہتر ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں۔ بہت شکریہ جی۔ شبلی فراز صاحب جی شکریہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک انتہائی تشویشناک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم یہاں جو کہ عدالت کے حکم پر یہاں پر اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے آئے تھے، اور یہ دوسری دفعہ ہے کہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ عدالتی فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا نہ کرنا یہ مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ملک جس میں کہ عدالتی فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھا جائے، وہ ملک نہیں کہلا سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا قانون جس کو اپنی مرضی کے خلاف، اپنی مرضی کے ساتھ ہی اس کو پک اینڈ چوز کیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالتیں اپنا وقار بھی کھو چکی ہیں اور وہ اپنی جو ایک رٹ ہے وہ بھی چھوڑ چکی ہیں، اپنی ختم کر چکی ہیں۔ اب جس طرح کہا لیڈر آف دا اپوزیشن نے کہ وہ عدالتیں یا وہ ججز جو کہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے دیتے ہیں،
अगर उस पे अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पे अमल दरामद नहीं करते तो उसकी फिर वो सजा का भी तयन करें और फौरी करें, क्योंकि अगर इस तरह से अदालती फैसलों की अहमियत कोई नहीं देगा तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक सिलसिला चल निकला है जिसमें कि ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहां पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं उनको अदालतों ने उनको सजा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया। शुक्रिया। आ जाए मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। नहायत ही अफसोसनाक, क्या शर्मनाक बात है कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो इस मुल्क में दो निज़ाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है, और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफर कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं, और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निज़ाम, तो ये एक मुल्क और दो निज़ाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिंटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहां पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं। वहां पर फोन कमरों से बरामद होते थे, और यहाँ पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है।
آپ سب کچھ بھی کر لیں گے نا تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہم بار بار انشاءاللہ تعالی اور بار بار ہم یہاں آ کر یہ بھی بتاتے رہیں گے کہ انصاف کے نظام کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے گا, جمہوریت کا جنازہ ہے دھوم سے نکلے گا, لیکن ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے, چاہے وہ رول آف لا کی لڑائی ہو, چاہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی ہو, چاہے وہ عدلیہ کی لڑائی ہو, یا چاہے ان ججز کی لڑائی ہو. ہم آپ کو بھی یہ بتاتے رہیں گے, آپ کو بھی یہ یاد کراتے رہیں گے کہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اور انشاءاللہ تعالی اب وہ دن دور نہیں ہے جب وزیر اعظم عمران خان بڑے دروازے سے عوام کی حقیقی آزادی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جو ظلم ڈرون کی وجہ سے KPK میں کیا گیا, یا جو ہماری خواتین کو ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور باقی خواتین کو آپ نے بلوچستان میں پکڑ کر کیا, یہی ظلم 26 نومبر کو یہاں پر ہوا تھا. ہم کچھ بھی نہیں بھولنے دیں گے اور کسی کو بھی نہیں بھولنے دیں گے. اور ایک ہی نعرہ ہے, پاکستان زندہ باد, وزیر اعظم عمران خان زندہ باد. اچھا ٹھیک. یہ سوال سے پہلے سوری ایک میں واضح کر دوں کہ ہمارا ایک وفد, اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب, اس پہ لطیف کھوسہ صاحب بھی ہیں, اور ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور سینیٹر علامہ صاحب, یہ سب جو ہیں یہ پرسوں کے گئے ہوئے ہیں بلوچستان, اور بڑی مشکل سے وہ سردار اختر خان مینگل صاحب کے قافلے کے ساتھ جا ملے, اور جہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کے لیے گئے ہیں. اور وہاں پہ بلوچستان کی حکومت نے ان کا رستہ روکا, ان کو آگے نہیں جانے دیا. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بلوچستان میں بار ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ 8 اضلاع میں کسی قسم کی ریٹ نہیں ہے, بلکہ وہ زیادہ اضلاع ہیں, ہم تو کم بتا رہے تھے. اور یہی چیز آپ دیکھیں کہ وہ محسن نقوی کا پچھلے سال سٹیٹمنٹ تھی کہ بلوچستان ایک صرف SHO کی مار ہے. تو کدھر ہے وہ SHO, کہاں پہ ہیں وہ لوگ؟ اور پرسوں بلوچستان حکومت نے خود اعلان کیا کہ پورے بلوچستان کے شہراؤں میں مغرب کے بعد کسی قسم کی ٹریفک نہیں چلے گی. خود اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. ملک میں خدا را ہوش کے ناخن لے, اور ایک شخص پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ. اچھا بتائیے گا, آپ چیف آرگنائزر پنجاب ہیں, آپ کے بہت سے پارٹی رہنماؤں نے کل میڈیا سے بات کی, انہوں نے کہا ایک تو آپ کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا, دوسری اندرونی لڑائیاں اس حد تک چلی گئی ہیں کہ حماد اظہر جیسے لیڈر کا جو استعفیٰ گونر صاحب ذرا پیچھے ہو جائیں, وہ کہتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا مقصد, ہمارا نظریہ اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں, اور ہمارا مقصد, ہمارا فوکس صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میں آپ کو بتا دوں, اس پارٹی کے اندر لیڈر صرف وزیر اعظم عمران خان ہے, باقی مجھ سمیت سب لوگ کارکن ہیں جو اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے ہیں. دیکھیں, ہماری اندرونی لڑائیوں پر روشنی ڈالنے سے پہلے کم سے کم یہ لوگ مجھے اس بات کا جواب دے دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ آج جو ٹیرف لگ گیا ہے پاکستان کے اوپر, اس کے لیے ریمیڈی کیا کی گئی ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ اس کا جواب دے دیتے کہ ڈرون حملے میں جو ہمارے عام لوگ معصوم شہری مرے ان کے لیے کیا کیا گیا, یا مجھے اس کا جواب دے دیتے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو آپ کب رہا کر کے بلوچستان میں امن لے کر آئیں گے. ہمارا مقصد پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے جدوجہد ہے, ہماری کوئی اندرونی لڑائی نہیں ہے. حماد بھائی میرے بھائی ہیں, باقی بھی پنجاب کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اب بھی ہم ساتھ ہیں. ایک مقصد ہے ہمارا, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی ہے. میں کوئی چیف آرگنائزر پنجاب نہیں ہوں, میں ایک کارکن ہوں, اور کارکن ہونے میں مجھے فخر ہے. یہ عہدہ عوام کے لیے. پنجاب میں جو گھر چھوڑے گئے ان کا ذکر کر لیں. دیکھیں, میں صرف اتنا یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے اگر ہماری خالد صاحب سے ملاقات ہوتی تو بالکل اس ٹاپک کے اوپر بات ہوتی, اور میں صرف اس وقت سب سے یہی کہوں گی, یہ وقت ہے
काम करने का, ये वक्त है पाकिस्तानी अवाम के लिए निकलने का, ये वक्त है पाकिस्तान के लिए सोचने का। ना आलिया हमजा रेलेवेंट है, ना कोई और रेलेवेंट है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये बता दें, पंजाब में आपने अफ्तार पार्टियों पे जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, फातिहा ख्वानियों पर जिस तरह के क्रैकडाउन्स किए हैं, कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मिसाल मिलती है कि घरों के ऊपर रेड किए जाए इसलिए कि आप लोग अफ्तारियां करा रहे हैं? इनका घर मैं देख कर आई हूं, चिकना चूर कर दिया गया। क्या था? अफ्तार रख लिया। इसलिए मैं ये बता रही हूँ, इस मुल्क को आगे जाने दें। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं और हमारा फोकस, हमारा एजेंडा वजीर आजम इमरान खान। इंशाल्लाह। नहीं सर, इसको बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की बावजूद नहीं मिलने दिया। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए, 2.5 महीने से हम लोग मुतवातिर आ रहे हैं और हमारी मुलाकात नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, ख़वातीन और हज़रात की लिस्ट जो कि इस जुमेरात की मुलाकात की होती है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद तहरीर करके और हमारे वकला हज़रात को हैंड ओवर करते हैं कि इन लोगों से, अपने साथियों से मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। और अदालत ने यह हुक्म दिया था कि खानदान के लोगों के साथ उनके जो सियासी रफ़्क़ाकार हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिन लोगों का कहेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब और यहाँ पे मेरे साथी नियाज़ुल्लाह खान न्याजी साहब हैसियत फोकल पर्सन जेल के यहाँ पे हुकाम को और लोगों को देंगे। और बदकिस्मती के साथ जो यहाँ पे एहलकार बैठे हुए हैं, ये पता नहीं किसके कहने पे, इंटेलिजेंस वालों के कहने पे, किसके कहने पे ये इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अपने दोनों बच्चों से इन्होंने तकरीबन पिछले 2.5-3 महीनों से बात नहीं होने दी। उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा की मुलाकात, उनकी बाकी बहनों की मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और ये कहीं पे जेल मैनुअल में नहीं लिखा कि ये मुलाकातें ना हो। और सो और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ईद की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। मैं भी यहाँ पे जेल की जो मस्जिद है, वहाँ पे जो चौकी की मस्जिद है, उधर जोर की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद मुझे अचानक ज़हन में ख्याल आया कि ये वही मस्जिद है जहाँ पे आज़म खान स्वाति साहब और मुझे मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ने दी। ये कैसे इस्लामी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे पुलिस जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो नमाजियों का रास्ता रोकते हैं, मस्जिद के दरवाजे बंद करते हैं। जहाँ पे पुलिस ये काम करे तो फिर पीछे ख़वातीन और हज़रात क्या चीज़ रह गई। जहाँ पे एक मेरे दिल में तो वज़ीर आज़म ही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनको ईद की नमाज ना पढ़ने दे तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है। जेल के अंदर सारा कंट्रोल इनका, और एक मुसलमान शख्स को वो नमाज ना पढ़ने दे इनको, ये इससे बड़ी और बेगैरती नहीं हो सकती। यही मैं कह सकता हूँ। तौहीन अदालत बार बार ये कर रहे हैं और आज भी शिबली फराज साहब ने तौहीन अदालत की पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उम्मीद करते हैं कि जो जज साहिबान बैठे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो बाकी अदालतों में हो, वो कुछ अपनी जो ऑर्डर्स हैं उसकी पासदारी करें और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान या सुप्रीम कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के जज साहिबान अपने अदालती ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करा सकें तो बेहतर है कि वो इस्तीफा दे के घर चले जाएं। बहुत शुक्रिया जी। शिबली फराज साहब। जी शुक्रिया। देखें, बात यह है कि एक इंतहाई तशवीशनाक माहौल पैदा हो गया है कि हम यहाँ जो कि अदालत के हुक्म पर यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान से मिलने आए थे और ये दूसरी दफ़ा है कि हमें उसकी इजाज़त नहीं दी गई। इससे ज़ाहिर क्या होता है कि अदालती फैसले कोई मानी नहीं रखते। अदालती फैसलों पे अमल दरामद करना ना करना ये मर्जी पे डिपेंड करता है।
कोई भी ऐसा मुल्क जिसमें के अदालती फैसलों को जूते की नोक पे रखा जाए, वो मुल्क नहीं कहला सकते अपने आप को, क्योंकि एक ऐसा कानून जिसको अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी मर्जी के साथ ही उसको पिक एंड चूज किया जाए, तो इसका मतलब है कि वो अदालतें अपना वकार भी खो चुकी हैं और वो अपनी जो एक रिट है वो भी छोड़ चुकी हैं, अपनी खत्म कर चुकी हैं। अब जिस तरह कहा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कि वो अदालतें या वो जजेस जो कि कानून के मुताबिक अपने फैसले देते हैं, अगर उस पे अमल दरामद कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई चंद अफसरान उस पे अमल दरामद नहीं करते, तो उसकी फिर वो सजा का भी तयन करें और फौरी करें, क्योंकि अगर इस तरह से अदालती फैसलों की अहमियत कोई नहीं देगा, तो फिर आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो अवाम हैं उसमें कई लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, वो जब देखेंगे कि अदालत का तो कोई मकाम ही नहीं है, अदालत की कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर वो क्यों कर कानून की पासदारी करेंगे। तो ये एक बहुत ही एक खतरनाक सिलसिला चल निकला है, जिसमें कि ऐसी वो बनाई जा रही हैं, मिसालें बनाई जा रही हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अगर अदालतें जो कि बनाई गई हैं इसके लिए, और मेरा ख्याल में कि जो खान साहब के अलावा, बुशरा बीबी के अलावा यहां पे जितने भी कैदी बैठे हुए हैं, उनको अदालतों ने उनको सजा दी है, तो हमारे मुलाकात न करवाना अदालत की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। और वो जजेस, उनको चाहिए कि वाकई या तो अपने फैसलों पे अमल दरामद कराएं या उन अफसरान को बुलाएं जिन्होंने उनके फैसले की अमलदारी में रुकावट डाली और उस पर अमल दरामद नहीं करने दिया। शुक्रिया। आ जाए मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं। नहायत ही अफसोसनाक, क्या शर्मनाक बात है कि मुल्क के मुंतखब वजीर आजम से आप जो बदतरीन क्रिमिनल्स के साथ सलूक भी नहीं होता ना, उससे भी बदतर सलूक किया जा रहा है। यहाँ क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, उनको भी जेल वाले दिन अपने खानदान से मिलने की इजाजत होती है जेल मैनुअल के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हमारे वजीर आजम इमरान खान को आपने उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया, उनको और उनकी अहलिया को ईद पर नहीं मिलने दिया, उनको उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया। यहाँ पर किताबें दी जाती हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम को आप किताबें और टीवी अखबार का एक्सेस नहीं दे रहे, बासी खाना दे रहे हैं, और जिस तरह की कंडीशंस में उनको रखा जा रहा है वो आप सबके सामने है। हम बात करते हैं ना एक मुल्क दो निजाम, तो इस मुल्क में दो निजाम ऐसे हैं कि एक शख्स जो करप्शन पर पकड़ा जाता है, जिसकी करप्शन साबित होती है, उसके प्लेटलेट्स गिरते हैं, कभी वो व्हील चेयर पर होते हैं, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। और हमारे वजीर आजम इमरान खान को सिर्फ अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है, और ये सजा इसलिए दी जा रही है कि वो शख्स हार नहीं रहा, वो शख्स झुक नहीं रहा, वो शख्स बिक नहीं रहा, वो अपनी कौम के मफाद के ऊपर अपने मफाद का सौदा नहीं कर रहा। उसकी फैमिली, उसकी अहलिया, उसकी बहनें सफर कर रही हैं, उसके बच्चे अपने बाप से बात करने को तरस रहे हैं, और हम सब लोग पिछले कई महीने से खान साहब से मिलने के लिए आते हैं, और उसके बाद इसी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो जब हम ये बात करते थे ना एक मुल्क दो निजाम, तो ये एक मुल्क और दो निजाम है कि अशराफिया की मीटिंग जेल में रहते हुए सुप्रिंटेंडेंट के एसी कमरों में कराई जाती थी, और यहाँ पर मीटिंग्स ही नहीं कराई जाती। वहां पर घरों से खाना आता था, 7-7 तरह की डिशेस आती थी, और यहाँ पर वजीर आजम खान को आप बासी खाना देते हैं।
वहां पर फोन कमरों से बरामद होते थे और यहां पर बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, 3 साल हो गए एक पार्टी के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरान के ऊपर आपने हर जुल्म कर लिया, हर फस्तायत कर ली, FIRs कर ली, रेड्स कर लिए, मुलाकातें बंद कर ली। उसके बावजूद भी हम आज भी अपने लीडर के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने लीडर वजीर आजम इमरान खान के साथ खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है, 25 करोड़ अवाम खड़ी है। आप सब कुछ भी कर लेंगे ना तो हम पीछे नहीं हटने वाले। हम बार बार इंशाअल्लाह ताला और बार बार हम यहाँ आकर ये भी बताते रहेंगे कि इंसाफ के निजाम का जनाजा है, धूम से निकलेगा, जमहूरियत का जनाजा है, धूम से निकलेगा, लेकिन हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे वो रूल ऑफ लॉ की लड़ाई हो, चाहे वो पाकिस्तान में जमहूरियत की लड़ाई हो, चाहे वो अदलिया की लड़ाई हो, या चाहे इन जजेस की लड़ाई हो। हम आपको भी ये बताते रहेंगे, आपको भी ये याद कराते रहेंगे कि ये मुल्क का नुकसान हो रहा है। कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। और इंशाअल्लाह ताला अब वो दिन दूर नहीं है जब वजीर आजम इमरान खान बड़े दरवाजे से अवाम की हकीकी आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो जुल्म ड्रोन की वजह से KPK में किया गया, या जो हमारी खवातीन को, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी खवातीन को आपने बलोचिस्तान में कर किया, यही जुल्म 26 नवंबर को यहां पर हुआ था। हम कुछ भी नहीं भूलने देंगे और किसी को भी नहीं भूलने देंगे। और एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। आलिया साहिबा, एक सवाल ले लें। एक सवाल। जी अच्छा, प्लीज, ठीक है। प्लीज। ये सवाल से पहले सॉरी, एक मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारा एक वफ्द, उस पे हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उस पे लतीफ खोसा साहब भी हैं, और हमारे साहबजादा हामिद रजा साहब और सेनेटर अलामा साहब, ये सब जो हैं ये परसों के गए हुए हैं बलोचिस्तान, और बड़ी मुश्किल से वो सरदार अख्तर खान मेंगल साहब के काफिले के साथ जा मिले, और जहां पे धरना दिया हुआ है वो बलोचिस्तान के लोगों के हकूक के लिए गए हैं। और वहां पे बलोचिस्तान की हुकूमत ने उनका रास्ता रोका, उनको आगे नहीं जाने दिया। इस चीज को हम लोग कंडेम करते हैं। बलोचिस्तान में 12 बार हम लोग कहते रहे हैं कि 8 अजला में किसी किस्म की रेट नहीं है, बल्कि वो ज्यादा अजला हैं, हम तो कम बता रहे थे।